Hello everyone, welcome to my channel all about biology. This is Jyoti Verma and today we will discuss about the very important question, that is the difference between normal root and colloid root of cycas. Besides this, we have to study about the external morphology and internal structure of the cycas. So we will deal up that topic with little subparts. So in this video, we will discuss about the root portion of cycas. So if we talk about cycas, cycas is a evergreen and slow growing tree, okay, and it is commonly found in xerophytic habitats. Xerophytic habitats are those habitats where there is a scarcity of water, where water is present in very less quantity. The main plant body of cycas is a sporophytic plant body, and it is differentiated into root, stem and leaves. And in this video we will discuss about the root of cycas. ओके, सो साइकस की अगर हम बात करें तो साइकस एक एवरग्रीन और बहुत ही स्लो ग्रोइंग ट्री है. ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है और ये कॉमनली जीरोफिटिक हैबिटेट्स में ग्रो करता है जहाँ पे पानी बहुत कम होता है. जो मेन प्लांट बॉडी है साइकस की वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है और उसको रूट, स्टेम और लीव्स में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. So this is the habit of the cycas plant. It is a tall tree and the main plant body is sporophytic and differentiated into roots which may be of normal roots or colloid roots, and it has a long stem and it has a group of leaves which are present at the apex. Okay, it consists of a crown of leaves and in the center the cones are present. सो साइकस के प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो साइकस की जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है. साइकस के प्लांट को हम 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, रूट, स्टेम और लीफ में. रूट में भी 2 तरीके की रूट्स इसमें प्रेजेंट होती है, नॉर्मल रूट्स और कोलोरॉइड रूट. कोलोरॉइड रूट ऐसी रूट्स होती हैं जिनका अपेयरेंस कोरल की तरह होता है. ज़ूलॉजी में आप लोगों ने कोरल के बारे में पढ़ा होगा. सो इनका अपेयरेंस कोरल की तरह होता है. ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं रूट्स और इनका अपेयरेंस कोरल की तरह होता है, इसलिए इन्हें कोलोरॉइड रूट्स कहा जाता है. साइकस की जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसे हम रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. उसमें एक बहुत ही लंबी सी स्टेम होती है जिसपे आपको लीव स्कार देखने को मिल सकते हैं और जो एपेक्स टिप है उस पर बहुत सारी लीव्स प्रेजेंट होंगी और सेंटर में आपका कोन प्रेजेंट होगा. तो ये इस तरीके से साइकस की प्लांट की हैबिट है. ये इस वीडियो में जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट है रूट का. तो साइकस के केस में 2 तरीके की रूट्स प्रेजेंट होती हैं. एक होती है नॉर्मल रूट और दूसरी होती है एपोजियोट्रोपिक या कोलोरॉइड रूट. ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल रूट एंड द कोलोरॉइड रूट. सो नॉर्मल रूट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रोपिक and colloid root is apogeotropic. Okay, so normal root is moving towards the gravity, so it is positively geotropic, and colloid root is apogeotropic because these roots move upwards. Okay, normal roots move downwards in within the soil, so it is positively geotropic, and colloid roots move upward or grow upward, so these are apogeotropic in nature. Next point is that the main function of normal roots is anchorage and absorption of water and mineral nutrients. So normal roots basically help to anchor the whole plant and they help in absorption of water and mineral nutrients from the soil. While on the other hand, the colloid root consists of a blue-green algae which can be Anabaena that helps in nitrogen fixation. Next point is root is thick and short.
Okay, however, the coloroid root are repeatedly dichotomously branched and giving the appearance of coral. So normal root and coloroid root both differ in their appearance also. Okay, so the root in the case of normal root is thick and short. However, the coloroid root is dichotomously branched. Next point is the lenticels are absent in the case of normal root. However, the lenticels are present in the case of coloroid root that helps in respiration, and through these lenticels the blue-green algae enters the coloroid roots. Okay, next point is that the secondary growth is present in the case of normal root. However, the secondary growth is absent in the case of coloroid root. So a secondary growth here means that there is a cambium. The cambium gets activated and it gets divided to form a secondary xylem and a secondary phloem. So you will be able to see secondary growth in the case of normal root. Next very important point is that root cap is present in the normal root. Every root has a root cap. However, in the case of coloroid root, the root cap is absent. सो अगर हम बात करें डिफरेंस की नॉर्मल रूट और कोलोरॉइड रूट की, तो नॉर्मल रूट हमारी पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होती है. इसका मतलब ये ग्रेविटी की तरफ मूव करती है, नीचे की तरफ मूव करती है, जबकि जो कोलोरॉइड रूट है वो एपोजियोट्रॉफिक इन नेचर होती है, ये ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं. सो इसलिए ये एपोजियोट्रॉफिक रूट्स हैं. ये प्लांट को सीधा रखने में हेल्प करते हैं और नॉर्मल रूट का काम होता है वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से. नेक्स्ट जो हमारा कोलोरॉइड रूट का फंक्शन है, कोलोरॉइड रूट में आपका ब्लू ग्रीन एल्गी कॉमनली एनाबिना प्रेजेंट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. अगर हम नॉर्मल रूट की बात करें तो नॉर्मल रूट का जो जनरल अपीयरेंस होता है वो थिक होती है और शॉर्ट होती है, लेकिन जो हमारी कोलोरॉइड रूट है वो रेपिटेडली डाइकोटमसली ब्रांच्ड होती है. इतनी ज़्यादा डाइकोटमसली ब्रांच्ड होती है कि उसकी जो अपीयरेंस होती है वो कोरल की तरह दिखने लगती. कोरल आप लोगों ने ज़ूलॉजी में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से इसके बारे में. सो कोलोरॉइड रूट इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसकी अपीयरेंस कोरल की तरह है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है नॉर्मल रूट में लेंटिसेल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि कोलोरॉइड रूट में लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और इन्हीं लेंटिसेल्स के थ्रू ब्लू ग्रीन एल्गी इंटर करती है कोलोरॉइड रूट के जो कॉर्टेक्स होता है, मिडल कॉर्टेक्स, उसमें इंटर करती है इन्हीं लेंटिसेल्स के थ्रू. Secondary growth is present in the case of normal root. However, secondary growth is absent. कोलोरॉइड रूट के केस में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है और जो हमारा नॉर्मल रूट है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है. यानी कि नॉर्मल रूट के केस में आपको सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और कैम्बियम देखने को मिलेगा, जबकि कोलोरॉइड रूट के केस में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा. नॉर्मल रूट में जो हमारा है उसमें रूट कैप प्रेजेंट होती है, जबकि कोलोरॉइड रूट में रूट कैप एब्सेंट होती है. सो ये तो हमारे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए रूट के, कि रूट किस तरीके से दिखती है, उसकी अपीयरेंस क्या है और क्या क्या डिफरेंस है जो हम एक्सटर्नली रूट को देखकर पहचान सकते हैं. अब हम लोग बात करेंगे इंटरनली किस तरीके से नॉर्मल रूट और कोलोरॉइड रूट को डिफ्रेंशिएट किया जाता है. ये डायग्राम ही अपने आप में सारा डिफरेंस क्लियर कर देगा नॉर्मल रूट और कोलोरॉइड रूट का. ये जो डायग्राम है ये है आपका नॉर्मल रूट का डायग्राम और ये कोलोरॉइड रूट का डायग्रामेटिक सेक्शन है. ये दोनों ही डायग्रामेटिक सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शंस हैं और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड है. सेलुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता. डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर हम नॉर्मल रूट को रिप्रेजेंट करें तो नॉर्मल रूट में और ये ओल्ड रूट है, ये यंग रूट नहीं है, ओल्ड रूट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी होती है. ओके, नॉर्मल रूट में अगर हम देखें तो नॉर्मल रूट में आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है कॉर्क की, थिक
कॉर की लेयर प्रेजेंट होती है नॉर्मल रूट में। उसके बाद कॉर के बाद कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, उसके बाद इंडोडर्मिस की लेयर प्रेजेंट होती है, फिर पेरीसाइकिल की लेयर प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये जो ओल्ड रूट है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, इसलिए आपको सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम भी देखने को मिलेगा। सेंटर से प्रोसीड करते हैं। सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा? जाइलम देखने को मिलेगा। कौन सा? प्राइमरी जाइलम। उसके बाद आपका ये जो ब्लैक वाला है ये है कैम्बियम। कैम्बियम क्या करता है? कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ करता है, मतलब एक्टिवली डिवाइड करता है, जिसकी वजह से जाइलम का फॉर्मेशन होता है अंदर की तरफ और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो कैम्बियम से जो हमारा फ्लोएम बन रहा है और जाइलम बन रहा है उसे हम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बोलते हैं। ओके, कैम्बियम से बना हमारा क्या? सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ, और कैम्बियम से बना क्या? सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ। अब क्या बचा? आपका फ्लोएम बचा जो कि बाहर रह जाएगा, तो प्राइमरी फ्लोएम ये बाहर की तरफ है। तो ये सिंप्लीफाइड, बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है नॉर्मल रूट का डायग्रामेटिक फॉर्म में। तो आपके नॉर्मल रूट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? कॉर्क देखने को मिलेगा, कॉर्टेक्स, उसके बाद कॉर्टेक्स की लेयर मिलेंगी जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे कॉर्टेक्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। उसके बाद आपको इंडोडर्मिस की एक लेयर मिलेगी, फिर पेरीसाइकिल की लेयर मिलेगी, और क्योंकि ये ओल्ड रूट है इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी होगी, तो आपको सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम भी देखने को मिलेंगे। तो इंडोडर्मिस पेरीसाइकिल के बाद प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट है यहाँ पे, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट है ये, उसके बाद कैम्बियम है और सेकेंडरी जाइलम है और प्राइमरी जाइलम है। ये बना कैसे है? कैम्बियम से बना है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब भी होती है स्टेम में या रूट में, तो जो कैम्बियम है वो एक्टिवेट हो जाता है और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। तो इस केस में भी यही हो रहा है, सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बना हुआ है और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बना हुआ है, क्योंकि ये कैम्बियम जो होता है ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये आपका प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ रह गया है। क्योंकि ये कैम्बियम जब एक्टिवेट होगा तो ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगा। ओके, ये है आपका नॉर्मल रूट का स्ट्रक्चर डायग्रामेटिक। अब हम बात कर लेते हैं कोलोरॉइड रूट की। कोलोरॉइड रूट में जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो यहाँ पे एपिब्लेमा है। ओके, उसके बाद जो कॉर्टेक्स है वो 3 डिफरेंट रीजन्स में डिफ्रेंशिएटेड है। आउटर कॉर्टेक्स, उसके बाद है मिडल कॉर्टेक्स और उसके बाद है इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन खास बात है कोलोरॉइड रूट की वो है इसका मिडल कॉर्टेक्स। मिडल कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो मिडल कॉर्टेक्स की जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं वहाँ पे पाया जाता है, जिसकी वजह से जो मिडल कॉर्टेक्स की सेल है वो कंप्रेस हो जाती हैं और लैटरली इलोंगेट हो जाती हैं। ओके, और जो आपका उसके बाद जो सेल्स है वो है आपकी इंडोडर्मिस की और पेरीसाइकिल की। और यहाँ पे जो जाइलम आपको देखने को मिलेगा, सेंटर में प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट है। ओके, और उसके दोनों तरफ यहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट है। ये आपका कोलोरॉइड रूट है साइकस के केस में। और जो कंडीशंस यहाँ पे प्रेजेंट है वस्कुलर बंडल की वो है एक्सार्च कंडीशन। एक्सार्च कंडीशन का क्या मतलब होता है? जो आपका प्रोटोजाइलम होता है, जो छोटे वाले सेल्स होते हैं जाइलम में उन्हें हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और जो बड़े वाले सेल्स होते हैं उन्हें हम मेटाजाइलम बोलते हैं। ठीक, तो जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, फेरी की तरफ होता है, तब उस कंडीशन को हम एक्सार्च कंडीशन कहते हैं। अब यहाँ पे आपका जो प्राइमरी जाइलम है उसमें 3 आपको एंड्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसे ट्राई आर्क कंडीशन कहा जाएगा। ओके, यहाँ पर भी आपका जो है एक्सार्च कंडीशन मौजूद है क्योंकि आपका जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ है। तो ये आपका मेन डिफरेंस है नॉर्मल रूट और कोलोरॉइड रूट में। अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट वाइज। इन द केस ऑफ नॉर्मल रूट द कॉर्टेक्स इज अनडिफरेंशिएटेड, however in the case of coloroid root the cortex is differentiated into outer cortex, middle cortex and
inner cortex. So as you can see in this diagram that the cortex is not differentiated into any layer. However, in colloid root the cortex is differentiated into outer cortex, middle cortex and inner cortex. Okay, so the cortex in the case of colloid root, basically the middle cortex is the algal zone and the blue green algae enters into the middle cortex through the lenticels. It enters the intercellular spaces due to which the cells become radially elongated. Okay, जो आप सेक्शन देखोगे कोलोरॉइड रूट का टीएस कट करके तो आपको जो मिडल कॉर्टेक्स दिखाई देगा उसमें आपको कुछ इस तरीके के सेल्स दिखाई देंगी, जिसमें क्या है ये जो ये बड़े वाले सेल्स होते हैं ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है जिसमें एल्गी प्रेजेंट है। उसके बाद जो ये आपको पतले से सेल्स दिखाई दे रहे हैं वो आपके मेन मिडल कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं। सो जो आपका एल्गी है या जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होता है। तो ये जो पूरा रीजन ये रिंग बनाता है वो मिडल कॉर्टेक्स होती है। और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी जो इस जोन में पाए जा सकते हैं वो है नॉन स्टॉक, एनाबीना, क्लोरोकोकम और कैलोथ्रिक्स। Next point is that the secondary growth is present in the case of normal root, as you have seen the secondary xylem and secondary phloem. However, the secondary growth is absent in the case of colloid root. Cortex to stele ratio is less. However, cortex to stele ratio is more because the cortex is differentiated into the 3 different zones. So cortex is more. However, in the normal root the cortex is less. Next point is cambium is present in the normal root and in colloid root cambium is absent. So these are the main points and the main differences between the normal root and the colloid root. So if you like the video then subscribe to my channel for further updates. Thank you so much.